That's amazing. That's amazing. You all are super duper excited. That I know. That is super amazing. That's great. That's amazing. Okay. So let me congratulate you first of all for showing up for today's session. You all are such an amazing audience that you want to learn and grow in your life. By continuing on the day third, you prove that you want to learn and grow in your life. That is what is all about. जब लोग कोरोना का रोना रो रहे हैं तब आप सीख रहे हो और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हो और यही तैयारी आपको आगे लाइफ में लेके जाएगी. This is what I want to assure you all about. Type in the comment box from which city you are from. आप लोग कौन से सिटी से हो प्लीज टाइप. Please mute yourself. Okay. Okay. From Patna, from Gwalior. Okay. From Delhi. That's great. From Daltonganj. That's great. Okay. So today's session I'll be starting with a very famous movie. How many of love movie? Type love movie. Yeah, that's great. Type movie. Which? How many of you love movie? That's amazing. Okay. So let me start with today's session with the movie of Diwar. How many of you have seen this movie Diwar and remember the famous dialogue of Diwar movie? Can anyone type the dialogue, famous dialogue? Okay. Yeah, that's great. Can anyone tell me the dialogue of the famous dialogue of this the Diwar movie? जो मूवी का फेमस डायलॉग है जो एक हीरो बोलता है कि मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो सेकंड हीरो बोलता है, क्या बोलता है सेकंड हीरो? कैन समवन टाइप? यस, राइट. सेकंड हीरो बोलता है आई हैव माय मदर, मेरे पास माँ है. दैट इज व्हाट द थिंग इज. It shows that you are having a hunger for success. That is what is required. So before starting the session, I would like to tell you that this is going to be most powerful session on the most important topic that is objection handling. Objection handling एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत लोग मात खा जाते हैं और जो कि लोग हैंडल नहीं कर पाते और जहाँ पे फेल हो जाते हैं. So that is what the main topic would be. So you make sure that you make a notebook and make a note and with a pen so that you can learn more out of this. क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए जरूर लिखें. और इन केस अगर नेटवर्क इशू आता है तो प्लीज रिज्वाइन, क्योंकि हम तो यहाँ रहेंगे ही अगले नेक्स्ट 60 to 90 मिनट वी आर विद यू. So let's start. Let me tell you one thing which is very much important. That is the problem is where the problem is all about. The problem अभी जो ये है कि people are not ready to change, but they want this situation and income to change, and this is not possible at all. How many of you feel that कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उनका इनकम चेंज हो लेकिन वो खुद को चेंज नहीं करना चाहते? टाइप 1 if you agree with this, टाइप 2 if you don't agree with this. Okay, type 1 if you agree with this, type 2 if you do not agree with this. Okay, everyone agree. Okay, that's great. Yeah, that is what the thing is. तो रियलिटी ऑफ द लाइफ इज, आप अगर जो भी हैं अभी जो भी अर्न कर रहे हैं वो इसलिए अर्न कर रहे हैं क्योंकि जो अभी तक आपने सीखा है. अगर आप फ्यूचर में कुछ अलग अर्न करते हैं तो आपको चेंज होना पड़ेगा फ्यूचर के अकॉर्डिंगली, तो आप अर्न कर पाओगे फ्यूचर के अकॉर्डिंगली. दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज. सो यू गॉट टू चेंज इफ यू वांट थिंग्स टू चेंज. बिना आपके बदले नहीं आपका इनकम बदलेगा, नहीं आपका सिचुएशन बदलेगा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू गॉट टू चेंज. एंड दिस इज व्हाट द यू ऑल आर सच एन अमेजिंग ऑडियंस, जो कि आप लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि आप सीखना चाहते हैं और चेंज होना चाहते हैं और अच्छे के लिए चेंज होके आगे बढ़ना चाहते हैं. दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज. So this is what the important thing is, that first you take the decision to change, then the decision changes you. पहले आप डिसाइड करते हैं, पहले आप डिसीजन लेते हैं कि मेरे को बदलना है ताकि मैं अपने इनकम को, मेरे सिचुएशन को बदल दूं, तभी जाके
आपका इनकम और आपका सिचुएशन बदलता है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? टाइप यस इफ यू एग्री, टाइप 2 इफ यू डू नॉट एग्री विद दिस. दैट आपको पहले आप डिसीजन लेते हैं बदलने का, फिर आपका डिसीजन आपको बदल देता है और आपकी सिचुएशन को बदल देता है. टाइप 1 इफ यू एग्री. That's good. That's good. Yes, yes. Okay, okay. That is what the truth is all about. So let's start with our own topic. At number one rule of selling is what? Always, always, always agree with the customer. अब लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि अग्री क्यों करें, अगर कस्टमर गलत भी बोल रहा है तो अग्री क्यों करें. तो इसका जवाब ये है कि जब आप अग्री करते हैं कस्टमर से, तभी आपको कस्टमर से क्या चाहिए, जो आपको कस्टमर से चाहिए वो आपको पहले देना पड़ेगा. दैट इज व्हाट द एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट. आपको कस्टमर से क्या चाहिए कि जो आप उनको बेच रहे हैं वो आपका वो चीज खरीद लें, उसके लिए वो अग्रीमेंट पे इंटर करें. दैट इज व्हाट यू वांट. तो उसके लिए पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जरूरी है कि आप उनको पहले अग्री करो. अगर कस्टमर बोलता है कि आई डोंट हैव मनी, यू गॉट टू अग्री फर्स्ट. आई अंडरस्टैंड सर, यू डोंट हैव मनी. अगर कस्टमर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, आपको ये पहले स्टार्ट इस चीज से करना है, अग्री सर यू डोंट हैव टाइम. उसके बाद क्या बोलना है आज हम लोग वो कवर करेंगे कि क्या बोलना, एग्जैक्टली बोलना क्या है, ताकि कस्टमर के नाक को आप हाँ में बदल पाओ. कस्टमर अगर बिजी है तो आप क्या ऐसा बोले जिससे उससे रिलेशन और उसके साथ अग्रीमेंट आप इंटर कर पाए. दिस इज व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू लर्न. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर हम लोग जब अग्री करते हैं तो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है. अगर आप अग्री करते हैं तो टाइप 1. इफ यू डू नॉट अग्री टाइप 2. टाइप 1 और 2. दैट इज द ग्रेट थिंग इज ऑल. अग्री अग्री या क्योंकि कोई भी चीज का शुरुआत तभी से होता है जब आप उनके साथ अग्रीमेंट पे इंटर करते हो. जब आप कस्टमर बोलता है आई डोंट हैव टाइम, आप बोलते हो टाइम नहीं है आपके पास, तो आप यही सोचिए फोन काट देते हो. बट वहां पे हमारा खत्म नहीं हुआ. जब कस्टमर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसके बाद क्या बोलना है हम लोग आज पूरा डिटेल में कवर करेंगे. इसलिए पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऑलवेज 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 अग्री विद द कस्टमर. तभी जाके हम लोग आगे का रिलेशन बना पाएंगे. क्यों? क्योंकि we want the agreement to be done. The rule is what? The rule is what you give is what you get. You want agreement, right? अगर आपको अग्रीमेंट चाहिए तो पहले आपको अग्री करना पड़ेगा, तब जाके आपको उधर से अग्रीमेंट आएगा. So you got to understand this. How many of you agree with this statement that you got to give for what you want in your life? आपको जो लाइफ में चाहिए पहले आप उनको दे दीजिए, तो फिर आपको वो लाइफ में मिल जाता है जो आपको चाहिए. Type agree if you agree with this. Type 2 if you do not agree with this. Type agree. That's great. That's amazing. Okay. That is what the whole thing is all about. If you want the agreement from the customer, then the customer, you got to agree with the customer first. Then only you can get the agreement with the customer. अब बात हो रही है कस्टमर की, तो ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसके साथ अग्रीमेंट करना है, जिनको अपने साथ अग्रीमेंट मिलाना है, उनको पहले हम जान लें. इसीलिए आज हम लोग पहला जो बात करेंगे कि बायर के बारे में बात करेंगे. कि पहले हम बायर के बारे में जानेंगे कि बायर क्या सोचता है, बायर क्या होता है. तो जब हम कोई भी चीज को जान लेते हैं तो उसी को पहचान के हम लोग उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं और वी कैन डील विद द ऑब्जेक्शंस व्हाट द बायर इज गिविंग टू अस. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस कि बायर कौन होता है. बायर, हम मेनी ऑफ यू कैन समवन टेल अबाउट व्हाट इज द बायर इज ऑल अबाउट. बायर क्या होता है? Right, the person who pays you money, the person who takes you goods or service. Yes, buyer means the person who is going to run your business, who is going to run your company, who is going to run your family. So buyer is so crucial and so important that you got to understand the buyer. And that is the reason कि जब भी कोई भी कंपनी बायर को पॉइंट रख के बायर की खुशी के लिए कोई भी काम करती है, तो दैट कंपनी इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड ग्रो in the long run, in the future run. So understanding the buyer is most important. How many of you agree with this statement that buyer is most important part of any business, of any company altogether? Type agree, agree. That's amazing. Okay.
सो डोंट सेल द प्रोडक्ट टू एवरी बायर, मतलब बायर अपने को पहचानना है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, क्या वो हर बायर के लिए है या हर कस्टमर के लिए है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। अगर आप कोई भी सर्विस बेचते हैं, कोई भी गुड्स बेचते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपका प्रोडक्ट हर किसी के लिए है तो मैं आपको आज बताता हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट हर किसी के लिए तो वो किसी के लिए नहीं है। क्योंकि सिंपल से अगर एग्जांपल आपको अगर दूं, 1 to 12 क्लास का बच्चा के लिए एजुकेशन ज़्यादा जरूरी है और उसके बाद वाले के लिए इनकम ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपको इनकम बेस्ड प्रोडक्ट या इनकम बेस्ड सर्विस बेचना है तो आप 12th और ग्रेजुएशन के ऊपर वाले को कंसिडर करोगे इन कंपैरिजन टू द 1 to 12th वाले बच्चे को, राइट और रॉन्ग? The person who is in the standard of 1 to 12 is going to focus on the study material, like what is required for the education, and thereafter they will focus on the earning part. If you agree, type 1. If you do not, type 2. I know you will agree. Yes, right, right. So that is what the thing is कि जब हम लोग को कोई भी सर्विस या कोई प्रोडक्ट बेचना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं आइडियल कस्टमर अवतार। मतलब आइडियल कस्टमर अवतार का मतलब क्या होता है? आइडियल कस्टमर अवतार का मतलब होता है कि आपका कस्टमर का अवतार कैसा होना चाहिए। मतलब अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, 1 to 12 क्लास के बच्चे को मैथ पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ाते हैं, तो आप जब कस्टमर का अवतार बनाओगे तो आप ये बनाओगे कि मेरा कस्टमर का एज ग्रुप क्या रहेगा, मेरे कस्टमर का एरिया ऑफ कौन से एरिया के लिए रहेगा, क्या लैंग्वेज रहेगा, क्या कौन से सिटी से होंगे, क्या स्टेट के होंगे, ये सब हम लोग वहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? एज ग्रुप कंसिडर करेंगे, उनका इंटरेस्ट क्या होता है, उनका एरिया क्या है, उनका हॉबी क्या है, उनका लैंग्वेज क्या है। दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हम लोग को पहले में डिसाइड कर लेना है कि मेरे कस्टमर में ये क्वालिटी होगा, उनके लिए मेरा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है। जैसे अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, अगर एजुकेशन का बात करते हैं, अगर आप 12th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप ये सोचोगे कि मेरा एज ग्रुप में अगर बात करें 16 to 20 के बीच में वो बंदा होगा। इंटरेस्ट क्या होगा उसका? पढ़ाई करने का, पढ़ाई करता होगा वो। एरिया, अगर आप कौन से रीजन से हैं, अगर आप साउथ से हैं तो आप वहाँ के लैंग्वेज को ध्यान में रखोगे। अगर आप इधर से हैं, ईस्ट वाले एरिया से हैं, तो आप दूसरे लैंग्वेज को ध्यान में रखोगे उस एरिया के अकॉर्डिंगली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर के अवतार को पहले पहचानें कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है वो किसके लिए है। जैसे मान लीजिए मेरा ये सेल्स ट्रेनिंग है, वो किसके लिए है? वो इनकम वाले बंदे लोग के लिए। जैसे हम जब टारगेट करते हैं तो उसमें एज ग्रुप क्या आता है? एज ग्रुप आता है 18 to 25, 18 to 40, 45 approx. The reason is these are the person who wants to earn, not only the going for the study material. So we provide the result basis so that everyone can learn this skill and thereafter earn through this skill. And for earning the skill, one most important skill is that is of selling. How many of you agree with this, that selling is the most important skill to earn in your life? Type agree if you agree with this, that selling is most important and crucial skill to learn and earn in your life. Agree, agree. That's amazing. That is super. Agree, agree. Yes, this is what the thing is. आप खुद सोचो ना, एक सिंगल स्किल जो कि आपके बिजनेस को इनकम ला के देता है, एक सिंगल स्किल जो आपको पैसे ला के देता है, कोई बिजनेस को पैसे ला के देता है, वो है सिंपल सेलिंग। जब आपका प्रोडक्ट बिक जाता है तो आपको पैसे आ जाते हैं, जब आपका सर्विस बिक जाता है तो आपके पास पैसे आ जाते हैं। तो दिस इज द स्किल यू गॉट टू मास्टर। और मैं आपको बताऊं, इसी स्किल को मास्टर करके ग्रैंड कार्डोन जो कि मेरे मेंटर हैं, ही हैज मेड अ ह्यूज सम ऑफ मनी। उनके पास खुद का एरोप्लेन भी है, यहाँ तक कि उन्होंने इसी के दम पे कमाया, क्योंकि उन्होंने ये आर्ट को मास्टर किया, इस आर्ट को सीखा और उसको अप्लाई किया। तो दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ लर्निंग दिस स्किल। दिस स्किल हैज provided so many results all together, all over the world, not in India but all over the world. So you are the one who is learning this skill, and when you implement this skill, you are going to make a lot of difference in your life. You are going to make a huge impact
in your life, in the life of the many of the people. अब इसमें किसी के अंदर ये सवाल आ सकता है, क्या सर मैं कभी सीख सकता हूँ, राइट? किसके अंदर ये सवाल है कि मैं नहीं सीख सकता, आई कांट लर्न द selling skill? If you're having this question in your heart, kindly type yes. If you're having this question, type 1 if you think that you cannot learn this skill. Type 2 if you think you can learn this skill. Right. Someone says 1. This is what the thing is. In the first class itself, मैंने first class में ये बताया था what are the misconception about the selling and what are the great things about selling is all about. मिसकंसेप्शन क्या होता है कि ये कोई पेट से ही सीख के आता है, मतलब किसी के अंदर इनहेरेंट ये क्वालिटी होता है, तो वो गलत है। ये एक ऐसा स्किल है जो कि हर कोई सीख सकता है, बट द थिंग इज यू गॉट टू लर्न, दे आफ्टर टेक अ एक्शन एंड दे आफ्टर यू विल गेट अ रिजल्ट। मैं हमेशा दो चीज बोलता हूँ कि दो चीज से तीसरा चीज मिल जाता है, एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है एक्शन। जब नॉलेज, जो आपने नॉलेज लिया है उसका जो एक्शन आप लोगे तो उससे रिजल्ट आएगा। नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, नॉलेज अबाउट द स्किल, नॉलेज अबाउट द सर्विस, उसी चीज का जब आप एक्शन में उसको तब्दील कर देते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। How many of you agree with this statement that 2 is the most important thing to get the third one? If you agree, type agree. If you do not, then type 2. Agree. Yes, that is what the best thing is all about. अगर कोई बोलता है कि मैंने ये क्लास लिया, मैंने ये चीज सीखा और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, दो चीज हो सकता है, अगर या तो उसने गलत आदमी से क्लास लिया या गलत आदमी से सीखा, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ने अप्लाई नहीं करा। फर्स्ट वाला केस होने का चांसेस बहुत कम है, बट सेकंड वाले का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लोग शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैंने एक कोचिंग लिया, एक क्लास लिया और मेरे को रिजल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप कोई भी लर्निंग का इम्प्लीमेंट करते हो तभी जाके वो रिजल्ट लाता है। आप खुद सोचो ना, आपने इंफॉर्मेशन लिया, आपने नॉलेज लिया, अपने दिमाग में रखा, लेकिन रिजल्ट आएगा कैसे? जबकि आप जाके किसी कस्टमर से बात नहीं करोगे, जबकि आप कोई आदमी से बात नहीं करोगे, रिजल्ट आएगा कैसे? क्योंकि योर मनी लाइज विद समवन, यू गॉट टू थिंक दैट who's got my money। आपको ये सोचना है कि आपका पैसा किसी के पास है, क्योंकि पैसे मार्केट में सबके पास भरे पड़े हैं, मार्केट में ही सारा पैसा है। ये आपके ऊपर है कि आप किस पैसे को ले लेते हो और कौन से पैसे को छोड़ देते हो। दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैंने पहले ही क्लास में बताया था माइंडसेट के बारे में, कि आप क्या सोचते हैं। फिक्स माइंडसेट है आपका कि ग्रोथ माइंडसेट है? अगर आपका फिक्स माइंडसेट होगा तो आप ये सोचोगे जो मेरे को मिला है उतना ही में खत्म। लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आप ये सोचोगे कि वे आर द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं ग्रैब करूं और रिजल्ट में तब्दील करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज होता है। तो टाइप इफ यू वांट टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट एंड टाइप 2 इफ यू वांट टू हैव अ फिक्स माइंडसेट। टाइप 1 इफ यू वांट टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, टाइप ग्रोथ माइंडसेट। GM और FM, which mindset you want to pursue in your life? GM, yeah, that is what the game is all about। क्योंकि जब आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करते हो तो आप टारगेट बनाते हो, टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा हार्डवर्क करते हो और एट लास्ट बहुत दूर तक पहुंच जाते हो। इट मे हैपन समटाइम्स दैट यू मे अचीव और नॉट अचीव अ गोल, बट द मेन थिंग इज you totally become a different person when you got to work hard towards getting that very goal or getting that very target, hitting those targets. So always have a growth mindset। So let's get back to our topic। That is what the thing is, ideal customer avatar। ideal customer avatar का मतलब क्या होता है कि आपको ये जानना है कि आपका पैसा, जिस पैसे से आपका बिजनेस चलेगा, जिस पैसे से आपका घर चलेगा, वो किसके पास है। उसी चीज को बोलते हैं आइडियल कस्टमर अवतार। मतलब कि अगर आप कोई भी गुड्स बेच रहे हैं, कोई भी सर्विस बेच रहे हैं, आपको पहले ये डिसाइड कर लेना होगा ये जो मैं बना रहा हूँ, गुड्स बना रहा हूँ या सर्विस जो मेरा है वो किसके लिए। अगर मान लेते हैं जैसे हम लोग एक टैक्स का सर्विस चलता है, वी फाइल टैक्स फाइलिंग सर्विस एज वेल, वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं हो सकता, वो मतलब 15-20 साल वाले लोगों के लिए नहीं हो सकता, वो हो सकता है इनकम अर्निंग, वो मेनली आपका 21-22 के ऊपर ही वाले लोगों
लोग ही ITR फाइल करवाएंगे, क्योंकि वही इनकम कैटेगरी होता है जो कि अर्न करते हैं। तो ये हमारा हर चीज को हम लोग इसी 5 चीज में और एक्स्ट्रा में बांट देंगे। जैसे कि हम लोग पहले एज ग्रुप डिसाइड करेंगे। अगर हम इनकम टैक्स फाइलिंग का बात करते हैं तो इनकम कौन से एज ग्रुप वाले करते हैं? 20 to 60 और 80, यू कैन assume that। इंटरेस्ट क्या होगा? दे वुड बी इंटरेस्टेड इन अर्निंग। वो बिजनेस कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे, उससे पैसा आ रहा होगा। एरिया ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, दैट्स राइट। हॉबी क्या होगा? हॉबी होगा काम करने की चाहत, और या जॉब में जा रहे होंगे या काम अपना बिजनेस कर रहे होंगे। लैंग्वेज कैन बी एनीथिंग। So this is what the most important thing is. How many of you are clear with this ideal customer avatar? Type all clear if you are clear with this. AC, type AC all clear. Type all clear if you are clear with this. All clear, all clear. That is what the most important thing. जब आप ये समझ जाते हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। आपके लिए फेसबुक पे ऐड चलाना भी आसान हो जाता है, आपके लिए फेसबुक पे दोस्त बनाना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपना कंसर्न जानते हैं, आप अपना इंटरेस्ट जानते हैं, आप अपने कस्टमर को जानते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आप उनको टारगेट करोगे, उनको पिच करोगे, उनसे बात करोगे और अपने बिजनेस और अपने सर्विस में लेके आओगे। राइट, ऑल क्लियर, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि आपने अपनी कस्टमर को जान लिया और आपको मैंने ये बता दिया कि ऑलवेज एग्री विद द कस्टमर। इसका मतलब क्या है? कस्टमर हमेशा राइट है। इट मे बी पॉसिबल आपके अंदर आता है कि यार ये बंदा सही कैसे हो गया, तो हमेशा बकवास करता है, दैट इज ओके। बट द थिंग इज, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम लोग को अग्री इसलिए करना है क्योंकि वी वांट अग्रीमेंट फ्रॉम द कस्टमर। हमको अग्री इसलिए करना है क्योंकि वी वांट टू क्लोज द डील, और नथिंग कम्स टू द बिजनेस जब तक एक डील क्लोज नहीं होता है। तो क्लोजिंग द डील इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके लिए क्या जरूरी है कि आई ऑलवेज फर्स्ट आई विल से आई अग्री, डन। आई प्रोवाइड यू विद द स्टेटमेंट एज वेल कि क्या क्या वर्ड आप यूज कर सकते हैं जिससे अग्रीमेंट स्टेटमेंट होता है। और आगे वाले सेशन, अभी आने वाला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। टाइप लर्न अ लॉट, टाइप लर्न अ लॉट if you want to learn more. Type learn more if you want to learn more. Type learn more. Learn more. That's great. That's amazing. Yeah, that is the thing is कि आपका कस्टमर हमेशा सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि he is going to provide you the money, जिससे आपका बिजनेस चलेगा, जिससे आपका धंधा चलेगा, जिससे आपके फैमिली मेंबर्स के ख्वाब पूरे होंगे। आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, वो भी आपके कस्टमर के पास ही पैसा है। So you got to agree first. Now the most important thing is, the reason for agreement is many other reasons. The first thing is you cannot anyone to expect to agree with you until you agree with that very customer. The second is opposite do not attract themselves. हम लोग ने कभी पढ़ा होगा opposites attract, बट इंसान इसमें जो सेलिंग में होता है वो सेम अट्रैक्ट्स like mind attracts like mind, like attitude attracts like attitude. That is what is born out of agreement. तो यही रीजन है कि जब आप अग्री करते हो तभी जाके अगला अग्री करेगा। तो अग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट it takes 2% to resolve a conflict? Type 2 if you feel, type 1 if you do not. Type 2 if you agree that it takes 2% to resolve the conflict. Okay. So let me tell you that it takes only 1% to resolve a conflict. Do you agree with this? Type agree if you agree. Type disagree if you do not agree with this. It takes 1% to resolve a conflict. Type agree or do not agree. Agree. Yeah, that is what the thing is. अब आप सोच रहे होगे कैसे, तो मैं उसका जवाब देता हूं। क्योंकि आप सिंपल से एग्जांपल लो, अगर आप किसी के साथ आपका फाइट होता है तो ये जाहिर सी बात है वो फाइट होगा एक पर्टिकुलर चीज पे, राइट?
मान लीजिए अगर आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपने भाई या बहन से लड़ाई कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लड़ाई होता है। मान लीजिए एक मोबाइल नया आया है जिसपे आपका भाई बोल रहा है भैया मेरे को ये चाहिए, राइट, आप बोल रहे नहीं नहीं ये तो मेरा ही रहेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे लड़ाई हो रहा है। बट आप क्योंकि इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हो, आप बोलते हो ओके भाई तो है, भाई को आप दे दीजिए मोबाइल। दैट इज व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट इज बीइंग रिजॉल्व। दैट इज व्हाट आई वांट टू से यू दैट इट रिक्वायर्ड 1% टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। और अगर इसको हम लोग अगर सेलिंग के भाव से देखें तो कस्टमर बोल रहा है आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आप भी बोल रहे हैं सर बिजी कैसे, बिजी कैसे, बिजी कैसे। लेकिन आप अगर बोल देते हैं आई अंडरस्टैंड सर यू आर बिजी एंड दैट इज व्हाट द बेस्ट थिंग इज ऑल अबाउट, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग व्हिच इज गोइंग टू डबल योर इनकम, वुड यू बी इंटरेस्टेड? आप बताओ कस्टमर क्या बोलेगा, whether he will say yes or whether he will say no, I don't have a time. Type yes if you agree, he will provide you the time. Type 2 if you do not agree with this. Agree. Right. That is what the game is all about. Why the agreement is important, why resolving the conflict is important. क्योंकि मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था प्रॉब्लम से बात नहीं बनेगी, सॉल्यूशन से ही बात बनेगी। दैट इज व्हाट द थिंग इज, सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। मतलब आपको प्रॉब्लम पे बात नहीं करना, वो तो प्रॉब्लम बताएगा ही, क्योंकि वो उसको सामान नहीं बेचना है, उसको पैसे आपके नहीं चाहिए, वो पैसा देने वाला है, तो वो बताएगा उसको प्रॉब्लम है, उसकी जिंदगी में बहुत दर्द है, उसको दर्द है कि उसके पास टाइम नहीं, उसको दर्द है कि वो बिजी रहता है, उसको दर्द है कि प्राइस ज्यादा है, उसको दर्द है, इस सारी चीज का दर्द है। लेकिन वही दर्द का आप सॉल्यूशन देंगे इसीलिए वो पैसा देगा। नहीं तो अगर आप उसके दर्द को कम नहीं करोगे तो फ्री में तो पैसे देगा नहीं, राइट। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट, यू गॉट टू सॉल्व द वेरी प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। तो यही जरूरी है कि आपको उसके दर्द को कम करना है, दूसरा उसके गोल को अचीव करने में मदद करना है। यही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हमेशा बताता हूँ कि सेलिंग इज ऑल अबाउट टू थिंग्स, यू गॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर क्लाइंट, सेकंड यू गॉट टू हेल्प हिम अचीव टू द गोल वेयर ही वांट टू गो। और सिंपल में अगर बात करें तो उसके दर्द को कम कर दीजिए और उसको पैसा कमाने में मदद कर दीजिए। अगर आप दो चीज में मदद कर देते हैं कोई भी क्लाइंट को, तो वो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू be with you and he ready to swipe his card and provide you with the money. How many of you want money? Type money if you want money. Type money if you want money. Money. Right. Everybody loves money. Right. That's great. Everybody loves money. That is what the thing is all about. So, most important thing is you got to agree with your customer. You got to focus that you have to resolve the conflict, not to increase the conflict. और conflict कैसे हल होता है, ये दो वाली बात नहीं होती, दोनों चाहेंगे तभी। एक बार के लिए मोबाइल दे दो यार, भाई है, कल को मोबाइल भाई खुद से दे देगा। It doesn't matter at all because it's a game of life that you got to resolve the conflict. So this is what I'm going to provide you with, agreement challenge. How many of you are ready to take this challenge? Type ready if you are ready to take this challenge. Type ready if you are ready to take this challenge. Ready. That's amazing. So this is what the agreement challenge is. You got to agree with your brother, sister, or someone you met throughout your day for the 24 hours. Because this is not about learning. What I have told you is knowledge plus action is going forward with the result. आपको पता तो ये चल गया कि agreement क्यों जरूरी है, agreement के बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं, selling करना भी जरूरी है और agreement ही selling की तरफ लेके जाता है। तो आपको उस चीज को प्रैक्टिस करना है, तभी तो रिजल्ट आएगा। राइट और रॉन्ग? टाइप राइट इफ दिस इज राइट, नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। टाइप राइट इफ यू अग्री विद दिस, टाइप राइट। दैट्स अमेजिंग। ओके, इन केस अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट इट ओवर, आपको फिर से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि दिस इज द ग्रेट स्किल यू गॉट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आप सेलिंग में जाना चाहते हैं, आप किसी को बेचना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको रिलेशन बनाना है किसी के साथ। और रिलेशन अगर बनाना है
तो यू गॉट टू स्टार्ट विद द अग्रीमेंट। और यही रीजन है, जब आप कभी कितने बड़े लोगों से मिलोगे ना, तो दोज आर द पर्सन, वो बहुत प्यार से ही सब कुछ बताते हैं, उसके बाद ही प्यार से ही क्लोजिंग कर देते हैं। दैट इज व्हाट यू गॉट नीड टू लर्न टू मास्टर दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, लाइक अगर छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ अग्री कैसे करना है, अगर आपके भाई बहन है तो वैसे, जैसे अगर वो बोलता है कि, अगर भाई आपका है, छोटा भाई है, वो बोलता है कि आई हेटेड, मतलब मेरे को स्कूल नहीं जाना है, तो हाउ यू कैन अग्री? आई अंडरस्टैंड, आई अग्री ब्रदर, मैं भी जब छोटा था तो मैं भी स्कूल नहीं जाना चाहता था। दिस इज व्हाट द एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको बोलना है आई अग्री, जब भी तो टाइम किसी के पास नहीं, इसका मतलब ये है कि यू आर अ ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन, you are making a lot of money, that is why you don't have a time. Can you devote some 10 minutes of yours so that I can tell you the strategy so that you can make double your income? So will that person will take interest in you? Type interest. If you agree, he will take an interest. Type interest. If you don't agree, type 2. Definitely he is going to take interest in that way too, because everyone wants to earn, but they are stucking at the point that they don't have a time and they are busy with doing non-productive activity. वो ऐसे काम कर रहे जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी वो बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, सो रहे हैं भले ही, बट वो बोलते हैं मैं बिजी हूँ। तो यही रीजन है कि आपको कस्टमर को पहचानना है, कस्टमर के पेन को कम करना है और उसके रिजल्ट को उसको पहुंचने में मदद करना है। दैट इज व्हाट द थिंग है। ओके, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अग्रीमेंट जो होता है वो सीनियर होता है क्लोजिंग का, क्योंकि जब आप अग्री करते हो तभी आप क्लोज कर सकते हो। जैसा कि मैं अभी तक बता रहा हूँ, you can show best salesperson or best people in the world and I can show you that they are master in agreeing. They agree with the customer. That is what the deal is all about. अग्रीमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सेलिंग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होता है वो क्या होता है? ट्रस्ट। आपका, आप एक चीज मेरे को ये बताइए कि कस्टमर आपके सर्विस को, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक बार में ना बोल देता है, क्यों? कैन समवन से व्हाई कस्टमर से डायरेक्टली नो टू योर प्रोडक्ट और सर्विस? ट्रस्ट फैक्टर इज देयर। क्योंकि आप ये सोचो कि जो आप अपने सर्विस के बारे में जानते हो, जो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, अगर वही चीज आपका कस्टमर भी आपके सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में जान ले, तो whether he will buy your product or service or not? Type yes. Yeah, this is what the thing is. He is not agreeing with the deal because उस डील के बारे में उसको पता नहीं है। जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके बेनिफिट को आपका कस्टमर भी उसी तरीके से जान ले जितने अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो क्या वो कस्टमर वो प्रोडक्ट या वो सर्विस लेगा, हाँ या ना? Yes, that is what the most important part is. Customer is unsure about you, unsure about your product. He does not trust you, and because he does not trust you, he is not going to care about you. That is what the most important point is. So you got to build relationship so that he can trust you. Then you can sell your product or service whatever you want to your customer. Do you agree with this? Building trust is most important. That is what the game is all about. यही रीजन है कि अगर कोई, if you agree with this statement type 1, कि trust is most important skill, most important element in closing the deal, right? Let me tell you an example. इसी ये ट्रस्ट फैक्टर के कारण ही आज जब हम कल बात कर रहे थे कि हम लोग उस प्रोडक्ट को लेते हैं जिस पे गारंटी रहता है, उस प्रोडक्ट को लेते हैं जिस पे वारंटी रहता है, हम लोग उस फ्री ट्रायल पहले यूज करते हैं, क्यों? ताकि ट्रस्ट बन पाए। आप लोग लिंक कर पा रहे हैं वहां से, जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि अपने फ्री ट्रायल देंगे, वारंटी देते हैं, क्लोजिंग देते हैं, ताकि कस्टमर के ट्रस्ट को बना पाए। दैट इज व्हाट द बेस्ट थिंग इज ऑल अबाउट। यही रीजन है कि अगर आप यूट्यूब प्रीमियम का बात करते हैं, वो इसीलिए पहले ट्रस्ट बनाने के लिए आपको फ्री में देता है कि आप यूज कीजिए, जब आपको भरोसा हो जाए तो आप हमारे से खरीद लीजिएगा।
डू यू एग्री और नॉट दैट ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? ये ट्रस्ट ही था जो जियो मार्केट में पूरा छा गया। स्टार्टिंग में फ्री से स्टार्ट किया, फिर उसने ट्रस्ट बिल्डिंग करा, फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग। आइए कहानी तो आप लोग को पता है। डू यू अग्री विद दिस दैट ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? या एवरीवन अग्री? That is what the amazing thing is all about. Trust is very important in any situation, whatever you do. क्योंकि ये भरोसे पे इंसान काम करता है, और एक बिजनेस में अभी तक यही होते रहता है कि बिजनेस बहुत कुछ डूब जाता है ट्रस्ट के कारण ही, और बहुत कुछ निखर जाता है ट्रस्ट के कारण। That is what the most important thing is all about. अगर आप बिजनेस बेच नहीं पा रहे, इसका मतलब ये है कि दे डोंट ट्रस्ट यू। सो यू गॉट टू मेक दिस ट्रस्ट फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ऐसा आप कुछ कीजिए जिससे वो आप पे ट्रस्ट कर पाए, आपके सर्विस पे ट्रस्ट कर पाए, आपके बिजनेस पे ट्रस्ट कर पाए, क्योंकि ये ट्रस्ट ही है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। How many of you agree with this? Enjoying the session till now? Type enjoying the session, and you are getting a lot of value. Type enjoying the session if you are enjoying the session. Enjoying. That's great. Okay. So next thing is is about responsibility. Can someone tell me about what is the responsibility? Responsibility का मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिंपल है, जिम्मेवारी। आप क्या कोई बता सकता है जिम्मेवारी लेनी चाहिए या देनी चाहिए? कैन समवन टेल मी दैट जिम्मेवारी लेनी चाहिए या देनी चाहिए? दैट्स ग्रेट, लेनी चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि जिम्मेवारी ऐसी चीज है जो दी नहीं ली जाती है। आप जिम्मेवारी दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्या हम ऐसा करें जिससे मेरा अपलिफ्टमेंट हो, मैं लाइफ में आगे बढ़ूं। जब हम जिम्मेवारी लेते हैं तब जाके हम ज्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन का मैं नाम लेना चाहूंगा, वो है ध्यानचंद। ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के प्लेयर थे। कितने लोगों ने ध्यानचंद के बारे में सुना है? टाइप यस अगर आपने सुना है, टाइप यस। ओके, किसी ने सुना? ठीक है, मैं बताऊँ। ध्यानचंद हॉकी के बेस्ट प्लेयर थे। वो जब हॉकी खेलते थे तो लोग बोलते थे कि इसके हॉकी में चुंबक लगा हुआ है, और वो जीत जाते थे। यही रीजन था कि जब ओलंपिक में उन्होंने जीता तो वहां पे हिटलर था। हिटलर ने देखा, बोला कि इसका हॉकी, जब वो खेल खेल के जीत रहे थे तो उसने बोला कि देखो इसके हॉकी में चुंबक लगा होगा, इसके हॉकी को तोड़ो। उसके हॉकी को तोड़ा गया, बट उसमें चुंबक नहीं था। तो फिर भी वो वर्ल्ड कप को वो जीत गए। तो हिटलर ने उन्हें बुलाया, बोला कि तुम्हारी कंट्री तुमको क्या देती है, तुम क्या करते हो? तो वो बोले कि मैं जनरल सूबेदार हूँ। तो हिटलर ने बोला कि आप हमारे साथ काम कीजिए, मैं आपको हायर पोजीशन पे यहाँ पे अपॉइंट कर दूंगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, या हाँ, तो हिटलर ने उनको बोला कि तुम हमारे साथ जर्मनी से खेलो, मैं तुम्हें डायरेक्ट हायर पोस्ट पे अपॉइंट कर दूंगा। लेकिन इन्होंने ये बोला कि मैं अपनी कंट्री के साथ ही खेलूंगा। क्यों? क्योंकि हिटलर ने जब उनको बोला कि तुम्हारी कंट्री ने तुम्हें क्या देता है, तुमने क्या दिया, आज भी कल भी तुम सूबेदार थे, आज भी सूबेदार हो, और कल भी वही रह जाओगे। तो जो ध्यानचंद ने जो बात बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बताने के लिए मैं आपको उनका स्टोरी सुना रहा हूँ। ध्यानचंद ने बोला ये कंट्री की जिम्मेवारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेवारी है जो मैं कंट्री को बढ़ाऊं। दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज।
जिम्मेवारी लेने से ज्यादा आप मजबूत बनते हो, जिम्मेवारी लेने से ज्यादा आप आगे बढ़ते हो। तो हमेशा जिम्मेवारी लेना सीखिए, ना कि किसी और पे टालने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जिम्मेवारी जब आप लेते हो तो ज्यादा आप मजबूत बन पाते हो, ज्यादा क्वालिटी आपके अंदर आता है, क्योंकि आप खुद को निखारने का सोचते हो, आप खुद आगे बढ़ने का सोचते हो। लेकिन आप सिर्फ देने का जब सोचते हो तो सोचते हो वही कर देगा, वही कर देगा, वहां पे आपका अपलिफ्टमेंट नहीं होता है। दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू गॉट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी for buying and selling. How many of you are ready to take the responsibility from today? Take the responsibility. Responsibility. Take responsibility if you are ready to take the responsibility from today onward. That's great. Amazing. Amazing. Okay. 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 That's great. That is what the thing is. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग टू गेट द वर्क डन। आपको ये जिम्मेवारी लेना होगा कि मैं इसको क्लोज कैसे करूं, मैं इनसे बात कैसे करूं, मैं उससे बात करूं, फिर उसके बाद फॉलो अप करूं, फिर मैसेज के थ्रू। देयर आर मेनी वेज टू फॉलो अप, जो कि मैं अपने मेन कोर्स में सिखाता हूं कि फॉलो अप कैसे करना चाहिए। देयर आर मेनी टेक्निक कि हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू कैसे कर सकते हैं, फोन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, कॉल के थ्रू कैसे करते हैं, वॉइस मेल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू फॉलो अप विद द क्लाइंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्च्यून लाइज इन फॉलो अप। जब आप क्लाइंट के साथ फॉलो अप करेंगे तो ही, हर क्लाइंट एक बार में कभी भी क्लोज नहीं होता है। कितने क्लाइंट 5 बार में, फिर 12 बार में। दिस ऑल आर द टेक्निक थ्रू विच यू कैन क्लोज, और वो ही रियल लाइफ में अप्लाई होता है। दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज। So this is what I want to say you, that you got to take the responsibility for buying and selling both. So these are the agreement statements which you got to practice on daily basis, and you got to start from today. I understand, I agree sir, you are absolutely correct. That is what I mean. Done. I agree, I am with you, I work out for you. So these are the statements you got to practice today with your brother, with your sister, with your client. I agree sir. Client बोलता है मेरे पास टाइम नहीं। agree sir, you don't have a time. That is what the great sign is all about. I agree sir, I understand sir. क्योंकि जब आप ये सब स्टेटमेंट बोलते हैं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बताओ कौन फोन काटेगा? जैसे कि बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि वो फोन उठाता नहीं, मैं हेलो बोलता नहीं, वो फोन काट देता है, मैं बहुत बिजी, बाद में बात करता हूँ। आप उनको सही नहीं बोलते, आप उनको पिच पे नहीं लाते हैं। ये सब अगर आप यूज करोगे तो यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और आप देखोगे there would be improvement in yourself, there would be improvement in whatever the work which you are doing, or you will get the result what you are wanted in your life. आपको वो रिजल्ट मिलेगा जिसके लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। So how many of you want result in your life? Type result if you want result in your life. Type result if you want result in your life. Result. Yes, this is what the most important thing is. This is going to bring you a result. Agreement statement. You got to practice this. I understand. I agree. You are absolutely right. You are correct. I am with you. Done. I'll work out for you. क्योंकि जब आप ये सब प्रैक्टिस करोगे तो जाके मेन रियल चेंज आएगा आपके लाइफ में और आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में। यू विल build a positive relationship with your client. You will build a positive, long lasting relationship with your client, and you will able to close your deal altogether. Now let's come to our main topic, जिसके लिए हम लोग अभी तक ब्रश अप कर रहे थे। This is what the main topic is, जहाँ पे बहुत से सेल्स लोगों को यहाँ पे दिक्कत आता है। ऑब्जेक्शंस का मतलब, ऑब्जेक्शंस बहुत आते हैं लाइफ में। ऑब्जेक्शंस का मतलब क्या होता है? कैन समवन टाइप इन द कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्शन? ओके ओके ओके, मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्शंस का मतलब मेनली जो होता है प्रॉब्लम, रुकावट, राइट? हाँ, दैट इज व्हाट द थिंग इज। मैं उसको सरल भाषा में बताता हूँ। ऑब्जेक्शन जो होता है क्लाइंट का, वो मेनली एक कंप्लेन होता है। उसको कंप्लेन है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसको कंप्लेन है कि उसके पास पैसे नहीं है। आप बताओ, अगर आप उनके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर दो तो वो अग्री करेंगे कि नहीं? राइट, दे विल एब्सोल्युटली अग्री विथ यू। अब बात करते हैं कि
सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि क्लाइंट ने अगर ये बोला कि उसके पास टाइम नहीं है, आप बोलते हैं टाइम नहीं है, तो वो आपके कॉल को काट देता है। तो आपको उससे पहले क्या करना है, अग्री करना है, क्योंकि आप जब उनको सॉल्यूशन दोगे तभी वो आपके सॉल्यूशन को लेना चाहेगा। प्रॉब्लम लेना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि हर लोगों के पास पहले से बहुत सारे प्रॉब्लम है। सो नो वन वांट्स टू टेक द प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, दे वांट सॉल्यूशन। अग्री और नॉट, टाइप अग्री if you want, if you feel that solution is the solution of any problem. Solution is important or problem is important? Solution is important, right? Right. So there are mainly 4 type of objections which we encounter in our life, जो कि मार्केट में अपने को मिलता है। 4 टाइप का प्रॉब्लम होता है। जो पहला ऑब्जेक्शन होता है वो होता है टाइम ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव टाइम। तो ये हो गया प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये रहा सॉल्यूशन। पहले हम लोग उनको ये बोलेंगे, आई अग्री सर यू डोंट हैव अ टाइम, दिस इज व्हाट मींस इज दैट यू आर डूइंग ग्रेट, बट अपने को जो अच्छी चीज, अपने को अच्छी चीजों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। आप बताओ आपको कब टाइम मिलेगा? अच्छी चीजों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। अगर मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊं अभी जो कि आपको आपका इनकम को डबल कर देगा, विल यू बी इंटरेस्टेड और नॉट? आप बताओ, ही विल बी इंटरेस्टेड और नॉट? इंटरेस्टेड या दैट इज व्हाट द थिंग इज। आपको उनको ये बताना होगा कि मैं आपको उनके इंटरेस्ट की बातों को बताना होगा कि देखो अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप ये बताइए कि देखो सर आप बताओ आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। वो बोलता है कि मेरा तबीयत खराब रहता है, मेरे को बीमारी रहता है, तो आप बताओ कि दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम मेनी ऑफ द पीपल, और ये आपका ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो विल ही बी इंटरेस्टेड, राइट? ही विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड। सो आपको पहले उनको अग्री करना है, फिर उसको अपने पॉइंट पे लाना है कि दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग यू विद, सो यू गो विद द सॉल्यूशन एंड यू विल गेट द रिजल्ट एंड ही विल डेफिनेटली अग्री। द सेकंड ऑब्जेक्शन इज प्राइस। द प्राइस इज टू हाई, आई कैन नॉट अफोर्ड द पेमेंट। आप लोगों में कितने लोगों ने सुना है कि प्राइस बहुत ज्यादा है सर, आई डोंट हैव अ मनी? टाइप यस अगर सुना है, टाइप 2 इफ यू वांट, सुना तो जरूर होगा। टाइप यस इफ यू अग्री। यस, प्राइस इज टू हाई, पैसे बहुत ज्यादा हैं। तो इसका हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? सर आई अंडरस्टैंड, आई अग्री, आई एम विथ यू दैट you don't have a money, but please tell me what do you have a plan to make the money? What do you have a plan? आपके पास क्या प्लान है कि आप फ्यूचर में पैसे कमा पाओ? वो सोचेगा, और उसके पास बहुत से लोगों के पास 80 to 90% लोगों के पास प्लान होता ही नहीं है। दैट इज व्हाट द रीजन इज ऑल अबाउट, क्योंकि लोग सोचते ही नहीं है। वो सोचते नहीं है तो प्लान करते नहीं है, प्लान नहीं करते हैं तो वो लिखते नहीं है, तो वो सोच में पड़ जाएगा कि उसके पास कोई प्लान भी नहीं है। तो आप उसके बाद अपने प्रॉब्लम को, अपने सॉल्यूशन को उनके पास बताओ कि देखो सर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये आपको पैसे लाके देगा, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप बताओ, प्लीज टेल मी, टाइप इन द कमेंट बॉक्स वेदर ही विल अग्री विद यू और नॉट। अगर आप किसी को पैसे कमाना सिखा दो, आप किसी को पैसे बनाना सिखा दो, तो वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? डेफिनेटली बनाएगा, डेफिनेटली। दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, राइट? आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम? आप बताओ वो क्या बोलेगा? आप किसी को बोलो कि अगर वो दर्द में है, उसको चोट लगा हुआ है, आप बोलो कि कब सही टाइम रहेगा उस दर्द पे मलहम लगाने का, वो क्या बोलेगा? राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज। अगर कोई बोले कि मेरे को पैसे का दिक्कत है, तो आप बोलो कि पैसे कमाने का उपाय क्या है? व्हाट डू यू हैव द प्लान टू अर्न द मनी? वो बोलेगा कि सर ये होगा तब वैसा करेंगे, वो होगा तब वैसा करेंगे, तो वो सही आंसर नहीं है। आप खुद सोचो ना, जो कि पोस्टपोन करते जाता है वो पोस्टपोन होते जाता है। द बेस्ट टाइम टू टेक द डिसीजन इज राइट नाउ, क्योंकि जब जो सिचुएशन अभी है, बाद में वो सिचुएशन बदलेगा नहीं। वो सिचुएशन उस समय कुछ और सिचुएशन रहेगा, उस समय कुछ और सिचुएशन रहेगा, बाद में कुछ और सिचुएशन रहेगा।
तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आज लो और get ready enroll for the session so that you can make most out of the session and earn money. उनको ये भी आप बोल सकते हैं कि don't you feel that अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो you are lacking some skill, you are lacking some knowledge जो कि आप सीख के पैसे बना सकते हो, right or wrong? अगर कोई पैसे बना रहा है और कोई नहीं पैसे बना रहा है उसमें क्या अंतर है? जैसा कि मैंने हमेशा से दो चीजों को बात की है कि नॉलेज प्लस एक्शन इज गोइंग व्हाट इज द रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि स्किल जरूरी है। अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो उसका स्किल चाहिए आपको। यस सर नो? टाइप स्किल इफ यू अग्री दैट स्किल इज इंपॉर्टेंट टू मेक द मनी। टाइप अग्री इफ यू अग्री दैट स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेक द मनी। अग्री अग्री दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज। अगर कोई पैसे बना रहा है कोई नहीं पैसे बना रहा है उसका मतलब ये है कि उसके पास एक ऐसा पर्टिकुलर स्किल है जिसको वो एक्शन में ला रहा है जिससे वो रिजल्ट पा रहा है, और जो पैसे नहीं बना रहा है उसके पास वो स्किल ही नहीं है। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप व्हाई डोंट यू लर्न दैट स्किल जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ जिससे मैं पैसे कमा रहा हूँ तो आप भी पैसे कमा सकते हो, राइट? तो ऑलवेज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। जो हम लोग दूसरा का बात किए थे कि जो दूसरा ऑब्जेक्शन होता है प्राइस इज टू हाई, उस केस में आप क्या बोल सकते हैं? आई अग्री सर द प्राइस इज टू हाई। आई अग्री सर दैट द प्राइस इज टू हाई। इसीलिए हम लोग आपको बहुत सारा ऑप्शन दे रहे हैं, ईएमआई ऑप्शन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑल दिस ऑप्शन वी आर प्रोवाइडिंग यू विद फोन पे, गूगल पे। Sounds good, let's enroll. This is what the thing is all about. How many of you are finding this useful? Type useful if you're finding this useful. Type useful if you're finding this useful. Useful. Yes, that's what it is. Right. So the next thing is, next objection which is, हम लोग ने टाइम का बात करा, हम लोग ने प्राइस का बात करा, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट का। कि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में वो जानता नहीं है और आपके प्रोडक्ट को वो ट्रस्ट नहीं करता है। ट्रस्ट फैक्टर जहाँ पे आता है, जो हम लोग ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे, इसका हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं? वो ये दे सकते हैं, पहला तो हम लोग अग्री करेंगे, आई अग्री सर। बहुत से लोग, क्योंकि लोग, ये हम लोग लाइन क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग भीड़ को फॉलो करते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं, बहुत से लोगों को भी यही दिक्कत थी, वो भी स्टार्टिंग में ये प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद नहीं कर रहे थे, बिकॉज दे वर नॉट डूइंग व्हाट द प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप अपने प्रोडक्ट या आप अपनी सर्विस के बारे में जानते हैं और जितना आपको भरोसा है, अगर वही चीज वो भी भरोसा कर ले जो आपका कस्टमर है, whether he is going to buy that thing or not, अगर आप जहाँ पे हैं अगर कस्टमर को भी उसी लेवल पे आप ला देते हैं तो whether he is going to buy that product or not, whether he is going to buy that product or not. Type yes if you agree he is going to buy, type 2 if you do not agree, type agree or don't agree. Agree. That is what the thing is, most important thing is कि आपको वो एफर्ट लगाना है ताकि आपका कस्टमर, आपके जो आप जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में, जो आप जानते हैं सर्विस के बारे में, वो आपको उनको बताना है। आपको उनको यहीं पे सोशल प्रूफ देना है, जिसके लिए आप यूज करते हैं, जो हम लोग टेस्टिमोनियल यूज करते हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल, रिटन टेस्टिमोनियल जो अपने यूज करते हैं, वो आप दिखाओ कि देखो सर ये भी थे जो पहले उनको विश्वास नहीं था, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को लेके, हमारे सर्विस को लेके दे आर फीलिंग मोस्ट delighted with our product and service. How many of you have seen this type of ideas earlier? जैसे कि आपने पहले कोई कोर्स अगर लिया होगा तो आपने ये देखा होगा, या जैसे मूवी हम लोग जब टेलीविजन देखते हैं तो ऐड जब चलता है तो उसमें बोलते हैं मैं घुटने में बहुत दिन से दर्द था, लेकिन मैंने ये प्रोडक्ट लिया, मैंने ये सर्विस लिया और मेरा सही हो गया। तो आपको भी लगता है अगर उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, और यू गो फॉर दैट प्रोडक्ट। How many of you have seen this earlier? Type 1 if you have seen this, type 2 if you haven't. अगर आपने देखा है तो 1 टाइप कीजिए, अगर नहीं देखा है तो 2 टाइप। 1 This is what the ये thing is all about. हर बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन ये काम कर रहा है,
जो कि हम लोग को पहले पता नहीं था, जो आपको पहले पता नहीं था, जो मेरे को पहले पता नहीं था, जो कि आपको आज पता चल गया। और ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो आपको सपोर्टिंग में पहले ही आप ऑब्जेक्शन को खत्म कर दीजिए। ये रहा टेस्टिमोनियल, ये रहा जो कि आपको डाउट है उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या उसका बेनिफिट है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, आप पहले उनको बता दें। तो अगर आप ऐसा बताते हो तो व्हाट डू यू थिंक ही इज गोइंग टू टेक योर प्रोडक्ट और नॉट? टाइप 1 if you think that they are going to take your product. Type 1. Right. That is what the thing is. And the last but not the least is what is the value. कस्टमर को यही नहीं पता है कि उसको वैल्यू क्या क्या मिलने वाला है, उसको वैल्यू नहीं पता है कि वैल्यू क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको उनको बताना होगा, देखो सर जो भी आप प्राइस दे रहे हो उसके बदले में आपको लॉट्स ऑफ वैल्यू मिल रहा है, मतलब जितना आप दे रहे हैं उसका एटलीस्ट 10 times to 20 times वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। जैसे आपने हमारे अगर जैसे आप हमारे व्हाट्सएप क्लास में आए हैं तो आपको ये पता है कि हम लोग ने जितना चार्ज किया उसका 10 गुना वैल्यू हम लोग दे रहे हैं। जैसे कि आपने जो प्राइस पे करा है उसके बदले में पहले तो हम लोग ने 5 ई बुक आपको जो दे दिया, दैट इज मोर देन द अमाउंट विच यू हैव पेड फॉर। आफ्टर हम लोग जो डेली का सेशन कर रहे हैं 1 से 1.5 घंटे का, तो दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, जिसको सीखने में मेरे को बहुत टाइम लगा है। मैंने टर्न्स ऑफ आवर्स डिवोट किया है, लॉट्स ऑफ मनी आई हैव इन्वेस्टेड, दैट you are getting that at very minimum cost. How many of you find this session to be valuable? Type valuable if you're finding this session to be valuable. Value. That's amazing. Okay. एक और ऑब्जेक्शन आता है, नीड टू थिंक अबाउट इट। कस्टमर बोलता है सोच के बताऊंगा, कस्टमर बोलता है पूछ के बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो अपने को ये ध्यान में रखना है कि जब कस्टमर बोलता है कि मैं ये सोच के बताऊंगा, तो आपको क्या बोलना है कि आई एग्री सर, ये सोचना जरूरी है, आपको सोचना जरूरी है, बट दिस इज सच अ अमेजिंग डील कि आप सोचने के बाद भी यही डिसीजन लेने वाले हो। व्हाई डोंट यू टेक द डिसीजन राइट नाउ? कस्टमर डाउट में रहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आपके उसके डाउट को क्लियर करना है कि हाँ वो सोच के क्यों बताएगा, कि वो बाद में खोजेगा, पूछेगा या किसी और से सजेशन लेगा तब वो डिसीजन लेगा। तो आपको वहीं पे उसका इसको किल आउट करना है। वो क्या आपको बोलना है? आई एग्री सर, यू शुड थिंक, दिस is the decision you will take definitely after thinking also. So why don't you take the decision right now? What do you think? He will agree or not? He will definitely agree. Why waste the time in thinking? Type agree if you agree with this statement that you are going to make a lot of closing from today. Agree. Right. Okay. So the next thing is the customer says I don't take rash decision. कस्टमर बोलता है कि मैं हाफिज़ली डिसीजन नहीं लेता। उस केस में आप क्या बोलोगे? आई एग्री सर, डन। किसी को रैश डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए। नो रैश डिसीजन शुड बी टेकन इन लाइफ। आई मस्ट एश्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी योर इंटेलिजेंट डिसीजन। आप पहले एग्री करें तो वो आपके साथ बीच में आ गया, उसके बाद आपने उसको बताया कि ये जो डिसीजन है वो इंटेलिजेंट डिसीजन है, उसके साथ सपोर्टिंग में जोड़ दीजिए। देखो सर ये भी पहले डाउट कर रहे थे, बट दिस इज व्हाट दे हैव गॉट द रिजल्ट, दिस इज व्हाट दे हैव गॉट द रिजल्ट, दिस इज व्हाट माय क्लाइंट्स हैव double their income, this is what my clients have make the achievement. जब आप ये सोशल प्रूफ के साथ उनको बताओगे तो कि आपका डिसीजन रैश डिसीजन नहीं होने वाला, आपका डिसीजन इज गोइंग टू बी द इंटेलिजेंट डिसीजन। डू यू अग्री कि they are going to purchase your product or service? Do you agree that they are going to enroll for your product or service? Type enroll if you agree that they are going to purchase your service. Type 1 if you agree, type 2 if you don't agree. कस्टमर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको ये एक और चीज है जो अगर कोई कस्टमर बोलता है मेरे पास आगे का 10 ही मिनट है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, कैन यू एक्सप्लेन दैट? आपको क्या बोलना है? डन, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दैट नेक्स्ट 5 मिनट्स ओनली। जो कि आपको जानना जरूरी है वो मैं आपको नेक्स्ट 5 मिनट में ही बता दूंगा, जिससे आप ज्यादा जान पाओ। तो ऐसे करके क्लोज करना है कि अपने एब्सोल्युटली नेक्स्ट इन 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग यू गॉट टू नो अबाउट। और उस 10 मिनट में आपको क्या बताना है? 10 मिनट में आपको रिजल्ट को बताना है कि
अपने सर्विस के बारे में जितना ब्रीफ में बता पाएं और रिजल्ट के बारे में बता पाएं। जैसे कि अगर आप सर्विस देते हैं, मान लीजिए इफ यू आर इन कोचिंग इंडस्ट्री, सो 10 मिनट में आप ऐसा क्या उनको बता दें जिससे उनको रिजल्ट मिल जाएगा। उनको आपको बताना होगा कि क्या क्वालिटी आप दे रहे हैं और जिससे रिजल्ट क्या आ जाएगा। और जैसे कि बोला जाता है कस्टमर वैल्यू जर्नी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर, कि अगर आपका कस्टमर यहाँ पे है और आपका सर्विस है यहाँ पे जो कस्टमर को यहाँ तक लेके जाएगा, तो आप एक उसका पार्ट यहाँ तक उसको पहुंचा दीजिए फ्री में। जैसे कि मान लीजिए मेरा ही सर्विस है, अगर मैं नेक्स्ट जो सर्विस के बारे में आपसे बात करूंगा, वो वहां पे जाने के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पे अभी ही ला के दे दिया हूँ, जो कि आप अगर यूज करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट इन योर लाइफ, जो कि बहुत कोई रिजल्ट हमारे क्लाइंट्स और कस्टमर पा चुके हैं, तो आप भी पा सकते हैं। तो वो चीज मैं बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आपको दे दिया हूँ। डोंट यू फील you will enroll for the next course? If you agree, type 1. If you don't, type 2. 1. Agree. That is what the most important thing is, कि आप अपने कस्टमर को पहले ही उस वैल्यू लेवल पे लेके चले जाएं जहां पे वो डिलाइटेड फील कर पाए। इतना सारा वैल्यू मिलने के बाद एवरी कस्टमर विल फील डिलाइटेड। डोंट यू एग्री विद दिस? तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप वैसे प्रोडक्ट और वैसे सर्विस को बेचें जो कि किसी के लाइफ में वैल्यू एडिशन करे, जो कि किसी के लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करे और किसी के गोल को अचीव करने में मदद करे। तभी आप उस विश्वास के साथ, उस भरोसे के साथ अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेच सकते हैं। लेकिन ये वाला टेक्निक आप उस चीज पे नहीं अप्लाई कर सकते जो किसी के लाइफ में वैल्यू लाए ही ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। So this is what the most important thing is. So how many of you have followed this activity yesterday which I have assigned you? Type 1 if you have followed this. Because the thing is, what I have always told you, कि मैं तो नॉलेज आपको दे रहा हूँ, जबकि अप्लाई आप नहीं करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू रिजल्ट गेट द रिजल्ट। So how many of you have done this? 1. Very correct. Do follow this. So I'm going to provide you with the task for today is you got to practice this argument statement. That is very much important so that you can close the day. How many of you are going to accept this challenge of argument statement? Type 1 if you are going to accept this challenge. 1. That's great. That's great. Okay. That's great. So let's come to our Q&A session. If you are having any question, then you can definitely ask me, and thereafter we are going to wrap it up. Type your question if you are having any question. Do you have any question? Please type in the chat box or raise your hand so that we can discuss your question and solve your query altogether. Okay. That's great. No question. That's amazing. If you have any question, you can ask in the WhatsApp group as well. We'll open a WhatsApp group in the evening session, so you can ask your doubt, and I'll be definitely answering those questions. Thank you, everyone. One person has asked a question. Let me answer that. Okay. Sir, may be the objection of when customer does not feel comfortable. Okay, can you please clear it out? Objections of when customer does not feel comfortable after purchase. Yeah, that is what the thing is. जैसे जो आपका सवाल है वो ये है कि अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को लेके सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा है, ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल आफ्टर द परचेजिंग द प्रोडक्ट, राइट? तो इस केस में क्या कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वही प्रोडक्ट और सर्विस को बेचना है
जिससे आप रिजल्ट दे पाए। अगर वो नहीं, अगर इफ ही इज नॉट getting the result, you got to refund the money or you got to help him achieve the goal। दो चीज आपको करना बहुत जरूरी है, या तो आप उनके पैसे को लौटा दीजिए, या दूसरा उनको आप वो सर्विस दीजिए और उनका हेल्प कीजिए ताकि वो रिजल्ट पा पाए। जैसे कि दो टाइप का प्रॉब्लम इसमें आता है। पहला जो ये होता है कि कस्टमर को तुरंत में रिजल्ट चाहिए, वो कभी पॉसिबल नहीं है। अगर कस्टमर ऐसा है तो वो ही इज नॉट अ राइट कस्टमर फॉर यू। लेकिन दूसरे कस्टमर ऐसे होते हैं, वो जेन्युइन कस्टमर होते हैं और वो अप्लाई करते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अप्लाई करते हैं, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आता। उस कस्टमर को आपको उनका पूरा सपोर्ट करना, उनका हेल्प करना ताकि दे आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। और उतने दिन अगर होने के बाद भी अगर वो आपके स्टेप्स को, आपके सिस्टम को फॉलो अप करते हैं, फिर भी अगर उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो यू गॉट टू इधर रिफंड द मनी और हेल्प हिम आउट सो दैट ही कैन मेक दैट मनी जितना वो पे करें। So in that very case, he is going to be your best customer and he is going to be advocate for your service or product which you providing with. This is definitely a great question you have asked altogether। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इस केस में अपने को ये ध्यान देना है कि वो कस्टमर कैसा है, whether he want the result instantly, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लाइफ में कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट मिलता नहीं है। There is shortcut to success, not a shortcut to success, right? दैट इज व्हाट द थिंग इज कि अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे को, मैंने आपको कोर्स लिया, मेरे को पैसा आ जाना जरूरी है, ऐसा होता नहीं है। ही गॉट टू प्रोवाइड द टाइम कि डबल 90 डेज 60 डेज उन्होंने काम करा है कि नहीं, जो आपने सिखाया उसको अप्लाई करा है कि नहीं। बिना अप्लाई करे तो रिजल्ट आएगा नहीं। वो सिर्फ नॉलेज लेके बोल रहे कि मैंने आपका प्रोग्राम लिया, मेरे को रिजल्ट नहीं आया, गिव मी द मनी, ऐसा नहीं होता है। बात ऐसा होता है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसने उससे आपने अप्लाई करा, उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पे यू बैक व्हाटएवर यू हैव पेड मी। राइट और रॉन्ग? टाइप राइट इफ यू एग्री विद दिस। राइट। थैंक यू। सो इफ एनी डाउट यू हैव, you can ask right now, otherwise we will wrapping this session up। That's great। Thank you everyone for your precious time। Thank you so much।